کالا جادو از قلم M.A. راحت۔ یہ سارے خیالات ان چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے دل میں آئے تھے۔ عجیب تشنجی کیفیت ہو رہی تھی۔ نہ جانے کس طرح دروازے کی زنجیر بجائی، ایک بار، دو بار، تیسری بار، پھر دوسری طرف کچھ آہٹیں سنائی دیں۔ زنجیر ہلی اور میری روح آنکھوں میں آ گئی۔ اب ابا کا چہرہ نظر آئے گا، امی ہوں گی یا شمسا، مگر دروازہ کھلا تو ان میں سے ایک چہرہ بھی آنکھوں کے سامنے نہیں تھا۔ وہ ایک باریش بزرگ تھے، سفید لمبی داڑھی، سفید کپڑے، چہرے پر نرمی تھی۔ جی میاں، کس سے ملنا ہے؟ انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ محفوظ میاں، یہاں ہم رہتے ہیں، نیاز اللہ ہے ہمارا نام، یہاں کوئی محفوظ نہیں رہتے۔ امی، شمسا، میری آواز رند گئی اور نیاز اللہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ کچھ عجیب سا انداز تھا ان کا، جیسے میری کیفیت پر غور کر رہے ہوں۔ میرے چہرے پر مایوسی کی گہری لہریں چڑھ گئی تھیں، آنسو تھے، آنکھوں میں امڑ آ رہے تھے، حلق بند سا ہو رہا تھا، سارے تصورات چکنا چور ہو گئے تھے۔ چند قدموں کا فاصلہ تو میں نے خوابوں کے محل بنا کر طے کیا تھا۔ دل نے یقین کر لیا تھا کہ ماں باپ کا چہرہ نگاہوں کے سامنے ہوگا، مگر یہ سب کچھ۔ کہاں سے آئے ہو میاں؟ سانسی کے رہنے والے ہیں یا کہیں باہر سے آئے ہیں؟ بزرگ نے بدستور نرم لہجے میں پوچھا، اور میں ایک بار پھر چونک پڑا۔ اگر میرے ماں باپ اس گھر میں نہیں رہتے تو شمسا یہاں کیوں آئی ہے؟ میں نے بزرگ کے عقب میں اندر جھانکتے ہوئے کہا۔ جناب، یہاں ابھی میری بہن آئی ہے، شمسا ہے اس کا نام، سیاہ برقع اوڑھے ہوئے تھی، ہاتھ میں چٹائی کی بنی ایک ٹوکری تھی۔ وہ میری بچھڑی ہوئی بہن ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر میں نے اسے دیکھا، لیکن ریل دور نکل چکی تھی۔ میں نے زنجیر کھینچ کر ریل روکی اور نیچے کودا۔ جب ریلوے اسٹیشن پہنچا تو وہ تانگے میں بیٹھ کر چل پڑی تھی، اور بمشغول تمام میں دوسرے تانگے میں اس کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آیا ہوں۔ میں اسے اپنی آنکھوں سے آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ نیاز اللہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمہاری بہن شمسا؟ جی، وہ ابھی برقعے میں ملبوس، مگر وہ تو میری بیٹی عزیزہ ہے، اپنی خالہ کے ہاں گئی تھی، 1 ماہ کے بعد وہاں سے واپس آئی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو۔ اچھا یوں کرو، آؤ اندر آ جاؤ، جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ میں ہچکچایا تو نیاز اللہ صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور دروازے سے اندر لے گئے۔ چھوٹا سا صحن، اس کے بعد برآمدہ، جس کے اندر 3 کمروں کے دروازے اور نہ جانے کیا کیا۔ برآمدے میں ایک تخت پڑا ہوا تھا جس پر دری اور سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ ایک طرف چوکی بچھی ہوئی تھی جس پر جائے نماز تہہ کی ہوئی رکھی ہوئی تھی۔ جائے نماز پر 1000 تسبیح رکھی ہوئی تھی۔ بزرگ مجھے برآمدے میں لے آئے اور تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر انہوں نے آواز لگائی، عزیزہ بیٹی، ذرا باہر آؤ۔ آئی ابا جان، کپڑے بدل رہی ہوں، جواب ملا۔ بزرگ خود بھی مجھ سے کچھ فاصلے پر تخت پر بیٹھ گئے۔ وہ بدستور میرا جائزہ لے رہے تھے، میرے چہرے پر بکھرے حزن و ملال سے متاثر ہوتے لگ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، میاں کہاں سے آ رہے ہو؟ شکتی پور سے۔ اوہو، اچھا، مگر تمہاری بہن کیسے گم ہوئی تم سے؟ ابھی ان کا سوال ختم ہی ہوا تھا کہ درمیانی دروازے سے ایک لڑکی اندر داخل ہوئی، سفید شلوار قمیض میں ملبوس، اچھے قد و خال، عمر کوئی 26-27 سال ہوگی، مگر یہ چہرہ شمسا کا نہیں تھا، قد و خال بھی نہیں ملتے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا تھا مجھے، اس کے چہرے پر شمسا کا دھوکہ کیوں ہوا تھا؟ کچھ غلطی ہو گئی، یقیناً کوئی غلطی۔ میں نے شمسا کو ہی دیکھا تھا، ہو سکتا ہے اس بیوقوف تانگے والے نے، مگر نہیں، لڑکی مجھے دیکھ کر ایک دم ٹھٹک گئی۔ اس نے واپس دروازے کے اندر جانا چاہا، لیکن نیاز اللہ کی آواز ابھری، آ جاؤ بیٹی۔ لڑکی ٹھٹکتی ہوئی برآمدے میں آ گئی۔ میری نگاہیں جھک گئیں۔ نیاز اللہ صاحب مسکرا کر بولے، میاں فیصلہ کرو، یہ تمہاری شمسا ہے یا ہماری عزیزہ؟ میں جلدی سے تخت سے نیچے اتر گیا اور شرمندہ لہجے میں بولا، میں بے حد شرمسار ہوں، انتہائی معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ ارے تو اٹھ کر کیوں کھڑے ہو گئے بھائی؟ ہماری عزیزہ اگر تمہاری بہن شمسا بن جائے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیا بات ہے ابا میاں، کون ہے یہ؟
स्टेशन से तुम्हारा पीछा करते हुए आए हैं, बल्कि तुम्हारी वजह से अपना सफ़र खोटा कर चुके हैं। मैं समझी नहीं अब्बा मियाँ। स्टेशन पर आप बुर्का ओढ़े हुए थीं, आपके हाथ में एक टोकरी थी जिसका एक हैंडल टूट गया था। क्या ऐसा हुआ था? मैंने बेख्तियार पूछा। जी हाँ, ऐसा हुआ था, लड़की ने कहा, और मेरे दिल में उम्मीद की आखिरी शम्मा भी बुझ गई। यह ख्याल आया था एक लम्हे के लिए कि तांगे वाले की गलत रहनुमाई से मैं यहाँ आ गया। हो सकता है शमसा किसी और सिमत निकल गई हो, मगर टोकरी के वाक़े का एतराफ़ इस बात की ज़मानत था कि मेरी आंखों ने धोखा खाया है ही नहीं। उस वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और नियाज़ साहब चौंक कर इधर उधर देखने लगे। फिर बोले, पता नहीं कौन है, मैं देखता हूँ। लड़की हैरान सी खड़ी मुझे देख रही थी। वैसे ही क्या हिमाकत थी कि मज़ीद यहाँ रुकता। नियाज़ुल्लाह के पीछे पीछे ही दरवाजे तक आया। दरवाज़ा खुला तो सामने ही उस तांगे वाले की शक्ल नजर आई जिसके मरियल घोड़े ने बामुश्किल तमाम यहाँ तक पहुँचाया था। तांगे वाला मेरी शक्ल देखते ही बोला, साहब नोट तड़ा लाया हूँ, आपका छूटे पैसे ले लें। नियाज़ साहब चौंक कर मुझे देखने लगे। तांगे वाले की बात ऐसी थी कि मुझे हंसी आ जाती, मगर तकदीर में तो आंसू ही लिखे थे। हंस नहीं पाया। तांगे वाले से कहा, भाई मैंने तुमसे छूटे पैसे नहीं मांगे थे। हैं? तांगे वाला हैरत से बोला, मगर नोट तो जी आपने हमें 10 रुपये का दिया था, यहाँ तक का बनता है 1.25 रुपया, बाकी पैसे का हम क्या करें? तांगे वाला मासूमियत से बोला। नियाज़ुल्लाह साहब ने मेरी तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर तांगे वाले से पैसे ले लिए। तांगे वाला इत्मीनान से वापस मुड़ गया। नियाज़ अहमद साहब हंसते हुए मुड़े और पैसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये तो अपना रिस्क अल्लाह से मांगते हैं मियाँ, किसी इंसान से बख्शिश लेने की आदत ही नहीं इन्हें। ये तुम तैयार कहाँ के लिए हो रहे हो? जी मैं जाना चाहता हूँ और एक बार फिर आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। आपकी जगह कोई और होता मेरी इस हरकत से नाराज़ हो जाता, लेकिन आपने, खुदा आपको इसका अजर दे। सारी बात ठीक है, मगर आप तशरीफ़ कहाँ ले जा रहे हैं? आइए, अब आप हमें ऐसा गया गुजरा भी ना समझें कि हम आपको एक प्याली चाय भी ना पिला सकें। और जहाँ तक बात रही आपकी गलत फहमी की, मियाँ गलत फहमी इंसानों ही को होती है, इसमें बुराई की क्या बात है? बल्कि हमें अफसोस है कि आपका नुकसान हुआ। न जाने कहाँ तक का टिकट होगा, यहाँ उतरना पड़ गया। अब वापस जाओगे तो नया टिकट लेना पड़ेगा। मैंने जल्दी से जेब से टिकट निकालकर नियाज़ुल्लाह साहब के सामने कर दिया ताकि अपनी सफाई सुनाई कहानी की तस्दीक करूं। नियाज़ुल्लाह साहब ने एक बार फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वापस लाकर तख्त पर बिठाया। लड़की अभी तक अपनी जगह खड़ी थी। नियाज़ुल्लाह ने उनसे कहा, अजीज़ा बेटी थकी हुई तो होगी, लेकिन हम जानते हैं हमें नाश्ता कराए बगैर तुम्हें नींद नहीं आएगी, और फिर अब तो हमारे मेहमान भी आए हैं। चुनाचा हो जाए, ज़रा जल्दी से तैयारी। अंडे नेमत खाने में रखे हैं और तुम्हारे हाथों के बेमिसाल पराठे। मियाँ ना मालूम मज़ा ना आए तो हमारा ज़िम्मा। बैठो, तकल्लुफ़ पर तकल्लुफ़ किए जा रहे हो मियाँ, लखनऊ के हो क्या? बैठो भाई बैठो, कम अज़ कम अपना नाम तो बता दो। कुछ ऐसा अजीब लहजा था उनका, ऐसी अपनायत और मोहब्बत थी कि हलक में फंसा हुआ गोला फूट निकला। कई दिन के रुके आंसू सिसकियों के साथ उबल पड़े। अजीज़ा जो दरवाजे की जानिब मुड़ने ही वाली थी, ठुठक कर रुक गई। नियाज़ुल्लाह भी हैरान रह गए, मगर मैं क्या करता? न जाने क्यों मैंने इस लड़की को शमसा के बारे में समझा और मेरा वजूद तहोबाला होकर रह गया। फिर न जाने दिल में क्या क्या आस लिए इस दरवाजे तक आया। बरसों के बिछड़े हुओं को देखने की आस बंधी थी, लेकिन नियाज़ुल्लाह और अजीज़ा मुझे ताज्जुब से देखते रहे। उनके सामने इस तरह रोते हुए सख्त शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन बंद टूट गया था। बहाव रोके नहीं रुक रहा था। दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया, फिर भी बर्दाश्त ना हो सका तो तेज़ी से दरवाजे की सिमत दौड़ पड़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। नियाज़ुल्लाह की आवाज़ें सुनाई दी थीं, यकीनन रोक रहे होंगे, मगर मैं नहीं रुका और इनके घर से बहुत दूर निकल आया। इसी आलम में सड़कों पर भागना बड़ा अजीब सा था, खुद को संभालना ज़रूरी। सामने ही एक बड़ का दरख्त नज़र आया जिसका तना बेहद चौड़ा था। उसकी आड़ में रुक गया, इधर उधर देखा। वैसे भी सांस सी बहुत बड़ी जगह नहीं थी,
आबादी भी ज़्यादा नहीं थी, चुनांचे उस वक्त आसपास लोग नज़र नहीं आ रहे थे और यहाँ मुझे काफ़ी सुकून मिला। दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गया, आंसू खुश्क किए। भूरिया चरण के खिलाफ दिल में जो नफरत थी वो इंतहा को पहुंची हुई थी कि क्या करूं, उस कमबख्त का क्या करूं। हमेशा ऐसी चोट देता है कि दिल सीने से बाहर निकल आए। यकीनी तौर पर वो भी मेरा नज़ीर धोखा था। मैं न जाने कौन से बेहतर रास्ते की सिमत सफ़र कर रहा था। उधर मेरी मंजिल हो और फिर रतौली के उस सुक्के ने जो कुछ बताया था वो भी मेरे लिए बाइस दिलचस्पी था। लेकिन भूरिया चरण कमबख्त मुझ पर भरपूर निगाह रखे हुए था और कहीं भी मेरी दाल गलने नहीं दे रहा था। वो लड़की शमसा की शक्ल में दिखाकर इसने मुझे रेल से नीचे उतार दिया। खैर भूरिया चरण, एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं तुझ पर हावी हो जाऊंगा। जो ख्याल तेरे दिल में है इसकी तकमील ना करने की तो मैंने अपना ईमान बना लिया है और इस ईमान को ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती करार दे दिया है। देखूंगा इस जद्दोजहद में ज़िंदगी कब और किस तरह चली जाती है, लेकिन पीर भागन के मुक़द्दस मज़ार की बेइज्जती या बेहुरमती अपने पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी की कीमत पर भी नहीं करूँगा। हाँ भूरिया चरण, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तू भी देखना कि तेरा वास्ता एक मुसलमान से पड़ा है। दिल में ना जाने क्या क्या तसव्वुरात आते रहे। शहर में रौनक होती चली गई। अब ज़्यादा लोग आते जाते नज़र आ रहे थे। पहले तो ये सोचा था कि किसी गलत तांगे का ताक़ुब कर बैठा हूँ, लेकिन जब नियाज़ुल्लाह साहब की बेटी ने टोकरी गिरने का वाक़या को भी तस्लीम कर लिया तो इसके बाद कोई शक नहीं रह गया और अब यहाँ शमसा की तलाश बेकार ही थी। बहुत देर तक वहाँ बैठा रहा। इसके बाद सांसी शहर का जायज़ा लेने के बारे में सोचा और वहाँ से चल पड़ा। बस यूं ही न जाने कहाँ कहाँ मारा फिरता रहा। कोई तसव्वुर जहन में नहीं था। खाने पीने का भी कुछ होश नहीं था। दिल था कि मुसलसल रो रहा था। दोपहर हो गई, सूरज अरूज पर पहुंच गया। गर्मी काफ़ी थी। मैं एक दरख्त के साए में जा बैठा। सुबह से कुछ नहीं खाया था। बैठा हुआ ही सोच रहा था कि अब यहाँ रुकना बेकार है। रेलवे स्टेशन जाऊं, अपना हुलिया दुरुस्त कर लूं और सांसी से कहीं और चल पड़ूं। कहाँ? मुरादाबाद का सफ़र भी किया जा सकता है। बाकायदा मालूमात हासिल करने के बाद मुमकिन है उन साहब के बारे में कुछ मालूम हो जाए और उनसे मामू रियाज के बारे में। अब तो कोई जगह ऐसी नहीं रही थी जहाँ एतमाद के साथ जा सकता और अपने माँ बाप को तलाश कर सकता। कितनी अजीब व गरीब बात थी। मैंने खुद ही उन्हें छोड़ा था, उनसे दूर हो गया था। मैं उनकी मुश्किलात में साथ नहीं दे सकता था और अब मेरी आरज़ू थी वो एक बार मुझे नज़र आ जाएं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरी ज़िंदगी में ना सही लेकिन बहरहाल जीना तो है। वक्त गुजर रहा था। मैंने किसी के कदमों की आहट सुनी। कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। चौंक कर देखा तो नियाज़ुल्लाह साहब थे। बड़ी संजीदा निगाहों से मुझे देख रहे थे। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। आप? मैंने हैरान लहजे में कहा। हाँ मियाँ, हम ही हैं। नियाज़ुल्लाह साहब अजीब से अंदाज में बोले। मैं उन्हें देखता रहा। वो दोबारा बोले, किसी को इस तरह जलील करना खिलाफ इंसानियत है। हमने थोड़ी सी मेज़बानी करनी चाहिए थी मगर तुमने हमें इस काबिल नहीं समझा। वजह जान सकते हैं? नहीं जनाब, मैं आपको जलील नहीं करना चाहता था। मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा। तो फिर गुनाह क्या है? तुमने इसका कफ़ारा ज़रूर अदा करो। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ नियाज़ुल्लाह साहब। इन अल्फाज से कफ़ारा अदा नहीं होता। उठो, हमारे साथ चलो। हमें शर्फ़ मेज़बानी बख्शो। जब चाहो चले जाना। हम भला तुम्हारा रास्ता क्यों रोकेंगे? खुदा आपको ज़माने की आफतों से महफूज रखे नियाज़ुल्लाह साहब। मैं नहायत मनहूस इंसान हूँ, इंतहाई सख्त कदम। जहाँ मेरे कदम रुकते हैं वहाँ मुसीबतों का आगाज़ हो जाता है। खूब मियाँ, ये नहूसत वगैरह हिंदुओं का अक़ीदा है। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह अपनी मखलूक से बहुत प्यार करता है और हम सब उसके बंदे हैं। वो किसी को मनहूस बना सकता है। खैर छोड़ो। एक बार फिर अपने गरीब खाने पे चलने की दरख्वास्त कर सकता हूँ क्या मैं? जो हुक्म, मैंने आहिस्ता से कहा। रास्ते में नियाज़ुल्लाह ने कहा, नाम अभी तक नहीं जानते हम तुम्हारा। मसऊद नाम है मेरा। माशाअल्लाह, वो बोले और खामोश हो गए। फासला तय हुआ। अंदर अजीज़ा मौजूद थी। मुझे देखकर बड़े खलूस से मुस्कुरा दी।
آپ لے آئے انہیں ابا جان، میں ان سے ناراض ہوں۔ کیوں بھائی؟ یہ مجھے بہن سمجھ کر میرے پیچھے آئے تھے، لیکن مجھے دیکھ کر انہوں نے مجھے بہن نہیں تسلیم کیا۔ اتنی بری ہوں میں؟ انہی سے پوچھ لو، مسعود ہے ان کا نام۔ بول ہی نہیں رہی میں ان سے، یہ خود جواب دیں۔ عزیزہ نے کہا۔ جی جناب، کیا فرماتے ہیں؟ نیاز اللہ بولے۔ ذمہ دار آپ لوگ ہیں، میرا قصور نہیں ہوگا۔ جس نے مجھ سے خلوص برتا، جس کے دل میں میرا پیار پیدا ہوا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، یہاں تک کہ میرے گھر والے بھی۔ شمسہ میری بہن ہے، وہ سب مجھ سے بچھڑ گئے ہیں۔ میری ماں، میرے باپ، میرے ماموں سب میری نحوست کا شکار ہو گئے۔ آپ کی بہن کی شکل میں دیکھا کچھ نظری دھوکہ ہو گیا، آپ کے پیچھے بہت سے امان لے کر آیا، یہ خیال تھا کہ میرا اب ماں باپ بھی نظر آ جائیں گے، مگر مجھے افسوس ہے میں آپ کی بہن نہ نکلی۔ بہن جیسی تو ہو سکتی ہوں، جہاں تک آپ کے منحوس ہونے کا تعلق ہے تو میرا ایمان پختہ ہے۔ خدا اپنے بندوں کو منحوس نہیں بناتا، اس لیے آپ ہماری فکر نہ کریں۔ آہ کاش! آپ کو علم ہے ابا میاں سارا دن آپ کے پیچھے پھرتے رہے ہیں۔ ہیں؟ میں چونک پڑا۔ ہاں مسعود میاں، آج ہم بھی جاسوس بن گئے، تمہارا تعاقب کرتے رہے، یہ دیکھتے رہے کہ تم کہاں کہاں جاتے ہو۔ جب تھک گئے تو تمہارے سامنے پہنچ کر تم سے یہاں آنے کی درخواست کر ڈالی۔ جس نے بھی مجھ سے اتنا پیار برتا ہے وہ مشکلات کا شکار ہو گیا ہے۔ آپ بھی وہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ معاملہ ہمارا اور اللہ کا ہے، اسے ہمارے اور اس کے درمیان رہنے دو، اور تم غسل کر لو۔ جاؤ بھائی، ہم نے آج ناشتہ تک نہیں کیا۔ صبح کو میری صورت جو دیکھ لی تھی، میں ہنس پڑا۔ میں نے بھی دیکھی تھی، مگر میں تو ناشتہ کر چکی ہوں اور دوپہر کا کھانا بھی کھایا ہے میں نے۔ جائیے، وہ غسل خانہ ہے، عزیزہ نے کہا، اور میں گردن جھٹک کر غسل خانے کی جانب چل پڑا۔ میری سسکیوں سے متاثر ہو گئے ہیں بیچارے، مگر میں کسی قیمت پر ان کے ہاں پڑاؤ نہیں ڈالوں گا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا۔ کھانا کھایا اور پھر دونوں باپ بیٹی گھیر کر بیٹھ گئے۔ نیاز اللہ بولے، پہلے ہمارے بارے میں سن لو۔ ہمارا نام نیاز اللہ ولد ضمیر اللہ ہے۔ سانسی ہی میں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، گو ہم نے آدھا ہندوستان دیکھا ہوا ہے، لیکن قیام یہیں رہا۔ ہمارے والد ضمیر اللہ صاحب کے پاس کچھ زمینیں تھیں جن سے کفالت ہوا کرتی تھی۔ بعد میں وہ زمینیں ہمیں منتقل ہو گئیں اور ہم ان کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ شادی ہو گئی، والد صاحب اور والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے اکلوتے تھے، جس کی وجہ سے تنہا رہ گئے، پر خود ہی کچھ بزرگوں کی کرم فرمائی سے شادی وغیرہ کا سلسلہ ہوا۔ شادی ہو گئی، مگر اہلیہ بہت عرصے تک ہمارا ساتھ نہ دے سکیں اور اپنی ایک نشانی چھوڑ کر اس دار فانوس سے کوچ کر گئیں۔ ہم نے اپنی تمام تر محبتیں اپنی بیٹی عزیزہ کو سونپ دیں، اور اب ہم باپ بیٹی زندگی گزارنے لگے، لیکن بیٹیوں کا ساتھ کچا ہوتا ہے۔ عزیزہ بیٹی کی شادی کی ہم نے اور بالکل ہی تنہا رہ گئے۔ تقدیر نے عزیزہ کے شوہر کو زندگی کی مہلت نہیں دی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عزیزہ صرف 6 ماہ سہاگن رہ کر بیوہ ہو گئیں، اور اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہ کرنے سے ارادہ کر لیا۔ ہم نے بھی ڈھلتی ہوئی عمر کے پیش نگاہ زمینیں فروخت کر دیں اور کچھ ایسی جائیدادیں خرید لیں جن سے کرایہ وغیرہ حاصل ہو سکے۔ سو اب یہاں یہ چھوٹا سا گھر ہے اور ہم اور یہ بیٹی ہیں اور یاد اللہ ہے، بس اس کے علاوہ زندگی کا کوئی اور مصرف نہیں۔ اس سے تمہیں یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہماری زندگی کیا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ تم سے تمہارے بارے میں پوچھیں۔ بے بسی یا یاس تم پر کیوں طاری ہے؟ دیکھو میاں، گریز نہیں کرنا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ انسان ہی انسان کا دوست ہوتا ہے اور دشمن بھی، لیکن ہمیں دوستوں میں تصور کرو۔ باقی رہا جہاں تک تمہارے وہم کا تعلق، تو ہو سکتا ہے تمہارے تجربات تمہیں یہ احساس دلاتے ہوں۔ ہمارا مسئلہ ذرا مختلف ہے۔ البتہ تمہیں ایک آزادی ضرور دی جاتی ہے، وہ یہ کہ اگر تم کچھ بتانے سے خود نقصان تمہیں پہنچے تو پھر تمہیں مجبور نہیں کریں گے، لیکن خواہش مند ہیں اس بات کے کہ تم ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ۔ چراغ سے چراغ جلتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری مشکل کا کوئی حل ہمارے پاس ہو۔ اس بات سے انکار نہیں کرو، قدرت پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے راستے متعین کرتی ہے، اور ان راستوں سے گریز کا مطلب ہے پریشانیوں کو خود پر نازل رکھا جائے۔ میں اس مخلص شخص کا چہرہ دیکھتا رہا۔
الفاظ تو سمجھ میں آنے والے تھے لیکن میرے تجربات کچھ اور ہی کہتے تھے۔ دیر تک خاموش رہا۔ عزیزہ نے کہا، ابا میاں یہ ہمیں اس قابل نہیں سمجھتے، آپ انہیں مجبور نہ کریں۔ کتنی کوشش کر چکے ہیں آپ، انہوں نے ہمیں اپنا سمجھ کر ہی نہیں دیا۔ رہنے دیں ابا میاں، ہمارا فرض ہے کہ ان کی خدمت کریں اور جب تک یہ یہاں رہنا مناسب سمجھیں ان کی خاطر و مدارت کریں۔ غیر واقعی کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ میں نے عزیزہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، عزیزہ بہن، آپ براہ کرم ایسی باتیں نہ کریں۔ میں تو محبتوں کا ترسا ہوا انسان ہوں۔ میں تو اپنے بھرے پورے گھر سے محروم ہو چکا ہوں۔ میں کسی سے گریز کروں گا؟ ہاں، یہ میرا تجربہ ہے کہ جس نے بھی مجھ سے محبت کا اظہار کیا مصیبت کا شکار ہوا۔ اگر آپ مصیبتیں خریدنا چاہتی ہیں تو مجھے اپنی زبان کھولنے پر اعتراض نہیں۔ ہاں میاں، ہم سے بات کرو، ہم مصیبتیں خریدنا چاہتے ہیں۔ نیاز اللہ بولے، تو پھر مختصراً میری کہانی یہ ہے کہ اچھے بھلے گھر کا فرد تھا، دماغ میں خناس پیدا ہوا، تن آسانیاں اپنا لی، ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر دولت کے حصول کا خواہاں ہو گیا۔ اس سلسلے میں کچھ ایسے راستے اپنائے جو ناجائز تھے، ایسے لوگوں کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا جو جنتر منتر سے دولت کے حصول کا ذریعہ پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک ایسے شیطان کے جال میں پھنس گیا جس نے مجھے کچھ ایسے کاموں کے لیے مجبور کیا جو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کے آتاب کا شکار ہوا اور مصیبتوں میں گرفتار ہوتا چلا گیا۔ والدین چھن گئے، خود در بدر کر پھرتا رہا، سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا اور اس کے بعد سے مارا مارا پھر رہا ہوں۔ اب نہ ماں باپ کا پتہ ہے، نہ بہن بھائی کا، اکیلا ہوں، زندگی کی صحبتوں میں گرفتار۔ نیاز اللہ صاحب نے میری ان مختصر الفاظ پر غور کیا، مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، ذرا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ میں نے اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر میری ہتھیلی کو سونگھا۔ دیر تک سونگھتے رہے، پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ سفلی علم کے زیر اثر ہو۔ میں نے انہیں جس قدر مختصر تفصیل بتائی تھی وہ ایک طرح سے میرے لیے یوں اطمینان بخش تھی کہ اس میں بھوریا چنن کا براہ راست تذکرہ اور اس کے عمل کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں تھی، اور یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ نیاز اللہ صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن نیاز اللہ صاحب نے صحیح تجزیہ کیا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہو سکتا ہے یہ کالا جادو ناپاک چیز ہے، اس کے کرنے والے کم بخت انوکھی قوتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات اگر کوئی چھوٹا موٹا عامل اس کا توڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو خود بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی لیے عام قسم کے لوگ جو کاروباری طور پر سب کچھ نہیں کرتے اور اس چکر میں نہیں پڑتے۔ البتہ تم نے یہ تو سنا ہوگا کہ زہر کا تریاق زہر ہی میں ہوتا ہے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ اس کے مصادق ایک بات فوری طور پر میرے ذہن میں آئی ہے۔ اب دیکھو نا، تم نے کم از کم کچھ حقیقتیں بتائیں تو میرے ذہن میں بھی کچھ خیال آیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم چاہو تو میں اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہوں۔ کیا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے نیاز اللہ کو دیکھا۔ نیاز اللہ صاحب مسکرائے، پھر کہنے لگے، رامانندی میرا بچپن کا دوست ہے۔ دوسری کلاس سے ہائی اسکول تک ہم نے ساتھ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اس کے میرے راستے مختلف ہو گئے، نہ جانے کہاں کہاں مارا مارا پھرا۔ پورے 16 سال کے بعد واپس آیا تو پاؤں زمین پر نہیں تھے، جوگی بنا ہوا تھا۔ گھر والے پہلے ہی اس سے مایوس تھے۔ جو باقی رشتے دار تھے جب وہ اس سے ملے تو وہ ان کے کام کا رہا نہیں، لیکن دوستی نہیں بھول سکا اور مجھ سے ویسے ہی ملتا رہا۔ کم بخت نے نہ جانے کیا کیا جنتر منتر سیکھ لیے ہیں، بڑا چکر چلاتا ہے، مالی حیثیت انتہائی مستحکم ہے، لیکن ویرانوں میں بسیرا کر رکھا ہے اور وہیں مستقل رہائش کر لی ہے۔ بڑا گیانی بنتا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس سے ملا سکتا ہوں، وہ تمہارے کام آ جائے۔ کیا وہ سفلی علوم کا توڑ جانتا ہے؟ بھائی نہ جانے کیا کیا توڑ پھوڑ کرتا رہتا ہے۔ وہ باقاعدہ سادھو بن گیا ہے، مگر لوگوں کا کہنا ہے بلا وجہ لوٹتا نہیں، کچھ جانتا ہے، بلکہ یہ کہوں کہ بہت کچھ جانتا ہے۔ چونکہ ہم مذہبی نہیں ہیں اور ظاہر ہے میرا کوئی راستہ کبھی ایسا نہیں رہا، لیکن اس سے جب بھی میری ملاقات ہوئی وہ بڑی محبت سے ملتا ہے۔ میرا خیال ہے صرف ایک میں ہی ہوں جسے وہ اپنا دوست سمجھتا ہے، اپنا شناسہ مانتا ہے۔ سینکڑوں بار پیشکش کر چکا ہے، اگر مجھے کوئی مشکل ہو تو اسے بتاؤں، مگر تم خود سمجھتے ہو کہ اس سے کسی مشکل کا حل مانگنا
यूँ समझ लो कि बहुत कुछ खो देने के मुतरादिफ है। लेकिन तुम्हारा मसला ज़रा मुख्तलिफ है मसूद मियाँ। मेरी मानो तो उससे मिल लो, हम इससे मशवरा कर लेते हैं। कम अज़ कम तुम्हें जो मुश्किल दरपेश है इसका कोई हल तो दरियाफ्त हो। मैं सोच में डूब गया। ये बिल्कुल एक नई सोच थी, नया अंदाज था। अब तक इस सिलसिले में जो थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई थी वो ऐसे लोगों के साथ हुई थी जो मेरे हम मज़हब थे। लेकिन नियाज़ुल्लाह साहब ने एक नया रास्ता दिखाया, यानी जहर का तोड़ जहर ही से हासिल किया जा रहा था। हो सकता है वो शख्स जिसका नाम रामानंदी है बकौल नियाज़ुल्लाह के इनकी दोस्ती के नाते कोई ऐसा तरीक़ा कार बता दे जिससे मैं भूरिया चलन से महफूज हो जाऊं। इस शख्स के सामने मुझे ज़बान खोलना होगी। बहरहाल ये भी करके देख लिया जाए, मैंने सोचा और नियाज़ुल्लाह साहब से रजामंदी का इजहार कर दिया। दूसरे दिन तमाम ज़रूरियात से फारिग होकर नियाज़ुल्लाह साहब मुझे लेकर रामानंदी के पास पहुंच गए। उन्होंने तांगे वाले से सवामी मुड़ चलने के लिए कहा। रास्ते में वो मुझे रामानंदी के बारे में बताते रहे। फिर हम सवामा मुठ पहुंच गए। चंद अफराद वहां बैठे जाप कर रहे थे। बहुत ही अजीब और वीरान सी जगह थी। हर तरफ खंडरात बिखरे हुए थे, ईंटों के ढेर, टुंड मुंड दरख्त, मनहूसी शक्ल के आदमी। नियाज़ुल्लाह साहब ने रामानंदी के बारे में पूछा। अंदर हैं, उसने जवाब दिया। ज़रा इन्हें बताओ नियाज़ुल्लाह आया है, हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। वो शख्स खामोशी से राहदारी से सीधा चला गया, मगर नियाज़ुल्लाह साहब वहीं रुक गए। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक मजबूत बदन का लंबा सा आदमी, जिसका सिर्फ ज़ीरी बदन ढका हुआ था, गले में रेठों की माला पड़ी हुई थी, कसरती बाजुओं पर हल्के बंधे हुए थे, सर और दाढ़ी के बाल बढ़े हुए और निहायत कलीज नज़र आ रहे थे, तेज़ी से आता नज़र आया। उसके पीछे वही सूखा आदमी दौड़ा आ रहा था। करीब आकर उस शख्स ने सर्द लहजे में कहा, आओ नियाज़ुल्लाह आओ। वो वापस मुड़ा। अजीब सा अंदाज था। नियाज़ुल्लाह साहब ने मुझे साथ चलने का इशारा किया और हम चल पड़े। कोई 10 कदम आगे बढ़कर अचानक वो शख्स ठुठक गया। उसने मुड़कर मुझे देखा। उसकी बड़ी और काली आंखों में बेपनाह चमक थी, तीखापन था। एक लम्हे वो मुझे देखता रहा, फिर आगे बढ़ गया। मेरी समझ में इसके सिवा कुछ नहीं आया था कि वो एक पुरस्कार और ख़तरनाक आदमी है। जिस जगह से हम अंदर दाखिल हुए थे वो कोई दरवाज़ा नहीं था, बल्कि एक दीवार में सुराख करके अंदर जाने का रास्ता बनाया गया था। नाहमवार ईंटों के दरमियान से संभल कर निकलना पड़ा, और जिस जगह हम पहुँचे थे वो उस पूरे खंडरात से भी ज़्यादा अजीब थी। बहुत बड़ा हालनुमा कमरा, जिसकी छत बेइंतहा ऊंची थी, उसमें दरमियान में एक टूटा फूटा फानूस लटक रहा था, जिसमें चंद शमएं रोशन थीं, मगर उनकी रोशनी नाकाफ़ी थी और हाल के बेशतर हिस्से तारीक थे। जगह जगह मर्ग छाले बिछे हुए थे। एक जगह बहुत सी ईंटें चबूतरे की शक्ल में चुनी हुई थीं और उन पर भी एक मर्ग छाला बिछा हुआ था। पास ही एक कंडल रखा हुआ था। कवि हैकर शख्स ने एक दरी निकाली और उसे हमारे लिए ज़मीन पर बिछा दिया। यहाँ बैठो नियाज़ुल्लाह, ये पाक साफ़ है और ज़मीन तो होती ही पाक है, वो बोला और हंस दिया। ज़मीन तो बेशक पाक होती है, मगर इस पर तुम जैसे नापाक लोग भी तो बसते हैं। सो तो है, मगर चलो, तुम जैसे पाक लोगों से हमारी नापाकी दूर हो जाती है। नियाज़ुल्लाह ने मुख्तसरन रामानंदी से मेरा तारुफ कराया और आने का मकसद बताया। रामानंदी ने मेरी दास्तान सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया। मैं इन तमाम बातों से खूब महफूज हुआ था, मगर फिर संजीदा होकर मैंने कहा, रामानंदा जी, मैं निहायत संजीदगी से आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोई कहानी सुनाते हुए मैं एक खौफ का शिकार हूँ। मैंने मुख्तसरन चचा नियाज़ुल्लाह को अपनी दास्तान सुनाई है, लेकिन इसका बहुत सा हिस्सा मैंने इन्हें नहीं बताया, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि रोज़े अव्वल ही से मैंने जिसे अपने बारे में कुछ बताया वो यकीनी तौर पर मौत का शिकार हो गया। मैं अपने कई प्यारों को खो चुका हूँ और अब इस कदर दहशत ज़दा हूँ कि किसी के सामने ये कहानी नहीं बयान कर सकता। मुझे नियाज़ुल्लाह साहब की ज़िंदगी का ख़तरा है, आपकी ज़िंदगी का ख़तरा है। मुझ पर तो जो बीत रही है सो बीत रही है। रामानंदी चंद लम्हात सोचता रहा, फिर उसने कहा, भतीजे, जिस जगह तुम बैठे हो
वहाँ हमारा राजपाट है। कोई आवाज़ यहाँ से बाहर नहीं जा सकती और कोई महागुरु यहाँ अंदर नहीं आ सकता। कितने ही ज्ञानी हो, अपनी अपनी हद होती है। यहाँ जो कुछ तुम कहोगे महफूज रहेगा और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। हमारा वादा है तुमसे। नियाजुल्लाह साहब गुस्सीले लहजे में बोले, और तुम मुसलसल हमारी तौहीन किए जा रहे हो। मियाँ ज़िंदगी अल्लाह ताला का अतिया है और वक्त जो कुछ भी पेश करे वो अल्लाह का हुक्म। ना इसके हुक्म में कोई रद्द-बदल हो सकता है और ना इसके हुक्म के बगैर किसी की ज़िंदगी का इख्तिताम हो सकता है। तुम हमारे ईमान में रखना डालने की कोशिश ना करो। ये सारे मामलात रामानंदी समझता है। इसे बताओ और मेरे सामने बताओ। मैं अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार होऊंगा। मैंने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, आपका हुक्म मान रहा हूँ रामानंदी जी। मुख्तसरन मैंने नियाजुल्लाह साहब को अपनी बर्बादी की दास्तान बताई, लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, मैंने एक अच्छे शरीफ ख़ानदान में जन्म लिया। मेरे वालिद महफूज अहमद साहब एक नेक और दीनदार आदमी थे, मगर मैं बचपन ही से गलत सोहबतों का शिकार हो गया। आसान ज़राए से दौलत के हसूल की कोशिश में मसरूफ़ रहा। मुझे किसी ऐसे आमिल की तलाश थी जो मुझे इन कोशिशों में मदद दे। तब मुझे भूरिया चरण मिला। उसने मेरा काम करने का वादा किया, लेकिन इसके सिले में उसने मुझसे भी एक काम करने की शर्त रखी। मैंने रामानंदी को पीर फागन के मज़ार की तफसील बताई। इसके बाद के वाक़यात सुनाए कि मेरे घर पर क्या बीती, बाद में हकीम सादुल्ला के साथ क्या हुआ, लाकअप और जेल में मुझ पर क्या गुजरी, बेचारे चांद खान किस तरह मौत के घाट उतरे, मनहूस भूरिया चरण कैसी कैसी शक्लों में मुझ पर नाजिल रहा, उसने ज़िंदगी किस तरह मुझ पर तल्ख कर दी, मेरे माँ बाप कैसे दरबदर हुए और मैं किस तरह नियाजुल्लाह साहब के पास पहुँचा। रामानंदी और नियाजुल्लाह साहब बड़ी दिलचस्पी से ये सारी दास्तान सुन रहे थे। उस वक्त नियाजुल्लाह साहब को मेरे रोने और सिसकने की असल दास्तान मालूम हुई थी और वो बहुत मुतासिर नज़र आ रहे थे। रामानंदी ने आंखें बंद की, देर तक खामोश रहा, सोचता रहा। फिर जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें कबूतर के खून की मानंद सुर्ख हो रही थीं। वो अजीब सी कशमकश के आलम में मुझे देख रहा था। कुछ देर के बाद उसने कहा, अब तुम क्या चाहते हो मसूद मियाँ? मैं क्या चाहूँगा रामानंदी जी, मेरा ख़ानदान बिखर चुका है। माँ बाप और बहन भाई न जाने कहाँ भटक रहे हैं और मैं जिन हालात से गुज़र रहा हूँ वो आपके सामने हैं। पुलिस अलग मेरी तलाश में होगी। मैं कभी ये साबित नहीं कर सकूँगा कि मैं इन बेगुनाह इंसानों का कातिल नहीं हूँ। इस सारे हालात में मेरी सोच क्या हो सकती है, मैं खुद नहीं जानता मैं क्या चाहता हूँ। अगर और कुछ ना हो सके तो सिर्फ एक काम हो जाए। क्या? रामानंदी ने पूछा। मेरे माँ बाप, मामू और बहन भाई अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लें और बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर करें। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपने जुर्म की फांसी की सज़ा हो जाए। अगर उन लोगों को एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी में दे सकूं तो मैं इसके लिए 1000 बार मौत कबूल कर सकता हूं। बस इतना हो जाए कि भूरिया चरण मेरे अहले ख़ानदान का कुछ ना बिगाड़ सके। क्या तुम्हारे दिल में कभी ये बात आई कि तुम भूरिया चरण का वो काम कर दो? रामानंदी ने पूछा। बस उस वक्त जब मैं पहली बार इस काम के लिए पीर फागन के मज़ार की सीढ़ियाँ तय कर रहा था, लेकिन जब मैं ऊपर नहीं पहुँच सका और मैंने वो होशरुबा मंजर देखा कि पीर फागन का मज़ार बुलंद से बुलंद हो गया और मेरे नीचे ज़मीन दूर से दूर हो गई, तो मेरा जहन बदल गया और इसके बाद से आज तक मैं किसी भी कीमत पर यह काम करने को तैयार नहीं हुआ और ना मरते वक्त तक उसका ये काम करूँगा। रामानंदी फिर किसी सोच में डूब गया। बहुत देर तक खामोश बैठा रहा। फिर उसने नियाजुल्लाह साहब से कहा, नियाजुल्लाह, मामला बड़ा ही गड़बड़ है, बहुत गंभीर है। मैं बहुत कुछ समझ चुका हूँ। वो पापी शकना है, शनखा है। शनखा काले जादू के बहुत बड़े माहिर होते हैं। शायद तुम्हें ये इल्म हो, सफली इल्म रखने वाले जो जंतर मंतर पढ़ते हैं उनके लिए इन्हें बहुत से मरहलों से गुजरना पड़ता है। उन मरहलों की एक तफसील होती है। शंखा 5वें दर्जे का ज्ञानी होता है और इस इल्म के कुल 8 दर्जे हैं। 8वां दर्जा किसी को नहीं मिल सका। बड़े से बड़े जादू का माहिर 6ठे दर्जे तक पहुंचा, मगर इसके बाद वो जी नहीं सका। 7वें दर्जे पर सिर्फ एक ज्ञानी पहुंचा था, मगर वो पत्थर का बन गया और ज़मीन की गहराइयों में उतर गया, क्योंकि ज़मीन उसका बोझ
बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। शंखा भेरों परम होता है, भेरू उसके सारे काम करता है। महाराज भूरिया चरण भेरू परम है, भेरू का निशान मकड़ी होता है। भेरू क्या है? नियाजुल्लाह ने पूछा। छोड़ो नियाज, ये काले इल्म है, तुम्हारी ज़बान गंदी हो जाएगी। और तेरी ज़बान जो गंदी है, मेरा तो धर्म ही दूसरा है। तेरे धर्म के लोग भी तो सारे तेरे जैसे नहीं होते, मानता हूँ, मगर इस बेचारे के मन की बात जितनी मैं समझ सका हूँ इतनी तुम नहीं समझ सकोगे नियाज। मसलन ये मौजूदा माशरे के गलत असूलों का शिकार है, जैसा कि मैं था। मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, इन गहराइयों में ना उतरो, तुम्हें और इसे दोनों को नुकसान हो जाएगा, और हमारी इन बातों से और बॉसों का नुकसान होगा। काला जादू सीखना इतना मुश्किल नहीं है। इसकी मिसाल यूँ समझ लो जैसे घोड़े या गंदे कीचड़ में पड़ी सोने की अशर्फियाँ। हाथ गंदे होते हैं मगर अशर्फियाँ हाथ आ जाती हैं। ईमान खोना पड़ता है मगर सोना मिल जाता है। जो वक्त गुजर रहा है वो तेरे सामने भी है नियाज, और मेरे सामने भी। ईमान तो बहुत से खो चुके हैं, बस वो काला जादू नहीं जानते। रिश्वत, चोर बाजारी, डकैती और ना जाने क्या क्या, ये सब ईमान के सहारे तो नहीं होता। इन सारे धंधों में ईमान तो सलामत नहीं रहता। बस इतना फ़र्क है कि वो ये सब काले जादू के सहारे नहीं करते। उनका अपना जादू दूसरा है, मगर उन्हें काले जादू के बारे में बता दिया जाए तो वो इसे ज़रूर सीख लेंगे, ताकि इनका काम और आसान हो जाए। मगर मैं तुम्हें भेड़ों के बारे में ज़रूर बता देता हूँ। चलो वही बता दो। सारे के सारे पलीद होते हैं। पहले कुछ काम करने होते हैं, इसके बाद पहला जाप करना होता है। वो किस लिए? पहले जाप के मुकम्मल होने के बाद हीर कब्ज़े में आता है। हीर आशीष होता है, मन खोने वाला। वो मन के अंदर बस जाता है, मगर इसका वजूद बाहर भी होता है, और तुम इसे खबरें लाने के काम में ला सकते हो। दूसरा जाप से वीर मिलता है, तुम्हारा दूसरा गुलाम। जब हीर और वीर तुम्हारे कब्ज़े में आ जाते हैं तो बीर की आवाज़ आती है, बारी आती है। बेर बहुत से होते हैं। 12 बेर बस में करने के बाद बेरू जागता है। बेरू एक होता है, मगर बेर बहुत से होते हैं। 12 बेर बस में करने के बाद बेरू जागता है। बेरू एक होता है, मगर सबका मीत, सबके काम आने वाला। इसे बस में करने वाला शंखा कहलाता है, और शंखा के पास बहुत ताकतें होती हैं। नियाजुल्लाह साहब बड़ी दिलचस्पी से बातें सुन रहे थे। मुझे भी ये सब कुछ अजीब सा लग रहा था। नियाजुल्लाह ने कहा, तुम्हारा कौन सा दर्जा है? रामानंदी मुस्कुरा दिया। बताना मना होता है। ओह अच्छा, तब मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, मगर एक बात ज़रूर बताओ। वो क्या? भूरिया चरण पीर फागन के मज़ार पर जाकर क्या करना चाहता था? नियाजुल्लाह साहब ने एक निहायत अहम सवाल किया। रामानंदी सोच में डूब गया, फिर आहिस्ता से बोला, वो खंडूला बनना चाहता है। खंडूला 6ठी मंजिल का शहंशाह, और इसके लिए किसी साहिब ईमान के घर को गंदा करना होता है। मगर कोई शंखा अपने पैरों से चलकर किसी पाक बुजुर्ग के मज़ार पर जाने की क़ुव्वत नहीं रखता। ऐसी कोशिश करे तो जलकर राख हो जाए। हाँ, किसी दूसरे साहिब ईमान का सहारा लेकर वो ऐसा कर सकता है, और मुझे यकीन है कि शंखा ऐसा ही चाहता होगा। दिमाग खुल गया था। सारी कहानी समझ में आ गई थी। भूरिया चरण के अल्फाज भी यही थे। उसने कहा था कि तू मेरा काम कर दे, मैं तेरा काम कर दूंगा। वो कुछ बना दूंगा तुझे कि तू सोच भी नहीं सकता। इसका मतलब है भूरिया चरण मेरे ज़रिए पीर फागन के मज़ार को नापाक करना चाहता था, और जब मैं पहली बार इसका पुतला लेकर उस पाक मज़ार की सीढ़ियाँ तय कर रहा था तो मेरा रास्ता रोका गया था। फासला तवील कर दिया गया था ताकि ये गुनाह मुझसे सरजद ना हो सके। आह, ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा। अगर मुझ पर ये मुसीबतें इसलिए नाजिल हुई हैं कि मैं एक मुक़द्दस बुज़ुर्ग के पाक मज़ार को नापाक बनाने का मुर्तकिब नहीं हो सका, तो ऐसा लाखों मुसीबतों को मैं भुगतने के लिए तैयार था, चाहे मेरा पूरा घराना बर्बाद हो जाए, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी बहन भाई, सब लोग, और ख़ुद मैं कुत्ते की मौत का शिकार हो जाऊँ।
لیکن یہ غلیظ کام میں قیامت تک نہیں کروں گا۔ میرے دل میں اب یہ عزم نئے سرے سے تازہ ہو گیا تھا اور روح کو بڑی ہی فرحت کا احساس ہو رہا تھا۔